بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے سرکولیشن آف بلڈ کو ڈسکس کرنا ہے تھرو دا ہارٹ تھرو دا باڈی. اچھا، آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ہم ہیومن ہارٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن ہارٹ نے پوری باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کروانا ہے، تو جو ہیومن ہارٹ ہے وہ ڈبل سرکٹ ہوتا ہے. اچھا، ڈبل سرکٹ سے مراد کیا ہوتا ہے پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے. اب دل کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پھیپھڑوں کو بلڈ بھیج رہا ہے، اور پھیپھڑے اس بلڈ کو آکسیجن اس میں شامل کر کے واپس ہارٹ کو سینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ہمارا دل باڈی کے اندر بلڈ کو بھیج رہا ہے، باڈی میں جا کے وہ آکسیجن استعمال ہوگی، اور پھر دوبارہ ہمارا دل اس سارے بلڈ کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے. کلیئر؟ تو اب ہمارے پاس دو قسم کے بلڈ کے ساتھ کنیکشن جڑے ہوئے ہیں، ایک ہارٹ کا لنگز کے ساتھ اور ایک ہارٹ کا باڈی کے ساتھ. تو ایک سرکولیشن ہو رہی ہے ہارٹ اور لنگز کے درمیان، اور ایک سرکولیشن ہو رہی ہے باڈی اور ہارٹ کے درمیان. تو جو سرکولیشن لنگز اور ہارٹ کے درمیان ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلمونری سرکولیشن. پلمونری سرکولیشن. اور جو باڈی اور ہارٹ کے درمیان ہو رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے سسٹیمک سرکولیشن. سسٹیمک سرکولیشن. اور اسی وجہ سے چونکہ دو قسم کی سرکولیشن ہارٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہارٹ کو ڈبل سرکٹ ہارٹ کہا جاتا ہے. ڈبل سرکٹ. کلیئر؟ کافی سارے اینیمل میں سنگل سرکٹ ہوتا ہے. سنگل سرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہارٹ ہے وہ لنگز کو سینڈ کرتا ہے اور لنگز ڈائریکٹلی باڈی کو سینڈ کر دیتے ہیں، اور باڈی پھر دوبارہ ہارٹ کو سینڈ کرتی ہے. تو یہاں ایک ہی سرکٹ ہے، ایک ہی سرکل ہے، ایک ہی سرکولیشن ہے، یونی ڈائریکشنل فلو ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ڈبل سرکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارٹ کی جو سائڈز کی اگر ہم بات کریں تو ہارٹ کی جو لیفٹ سائڈز ہے، لیفٹ سائڈ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ رکھتی ہے، اور ہماری جو رائٹ سائڈ ہے ہارٹ کی، جو لیفٹ سائڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ رکھتی ہے، اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ رکھتی ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ رکھتی. کلیئر؟ تو ابھی تک ہم سرکولیشن آف بلڈ کے اندر دو باتیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ڈبل سرکٹ ہے، پلمونری سرکولیشن ہارٹ اور لنگز کے درمیان، اور سسٹیمک سرکولیشن ہارٹ اور باڈی کے درمیان. پھر ہارٹ کی دو سائڈ ہیں، ایک رائٹ سائڈ ہے جس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اور ایک لیفٹ سائڈ ہے جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پوری سرکولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے پوری باڈی میں جب بلڈ ہوتا ہے تو بلڈ کی آکسیجن ٹیشو میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور ٹیشو میں استعمال جب آکسیجن ہوتی ہے تو وہ بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے. تو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پھر وینز کے ذریعے سے اکٹھا ہوتا ہے، اور جو ساری وینز ہیں دو بڑی وینز کے اندر آ کے کھلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ 4 چیمبر ہے. 2 چیمبر اوپر والے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ ایٹریم، ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ ایٹریم، اور 2 چیمبر ہیں نیچے والے، ایک کو کہا جاتا ہے رائٹ وینٹیکل اور ایک کو کہا جاتا ہے لیفٹ وینٹیکلز. ٹھیک ہے. تو اوورآل ہمارے پاس، اور یہ جو دیوار ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ انٹر ایٹریل سیپٹم ہے، اور یہ والی جو دیوار ہے یہ انٹر وینٹریکولر سیپٹم ہے. کلیئر؟ اچھا، ساری باڈی کا جو بلڈ ہے وہ جس بڑی نالی میں اکٹھا ہوتا ہے، ایک وہ ہمارے پاس اس نالی کا پورشن ہے جو نیچے سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو اکٹھا کرتی ہے اور ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں کھلتی ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ کے رائٹ ایٹریم میں کھلتی ہے. یہ ہارٹ کے پیچھے سے جا کے رائٹ ایٹریم میں اوپن ہوئی. اس کو کہا جاتا ہے انفیریئر وینا کیوا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفیریئر وینا کیوا. تو سب سے پہلے جو بلڈ جس کے ذریعے سے ہارٹ میں داخل ہوتا ہے وہ وینا کیواز ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس اوپر سے جو اوپر والے ہم اسٹرکچر ہیں، ہیڈ ہے، تو ان سے بلڈ کو اکٹھا کرتی ہے، اور یہ بلڈ کون سا ہے؟ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ.
तो ये सुपीरियर वेना कैवा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सुपीरियर वेना कैवा। तो पहले आप लोगों ने याद रखना कि सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आया? वेना कैवा। और यहां से किस में चला गया? राइट एट्रियम में चला गया। क्लियर? अच्छा, ये जो राइट एट्रियम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो ब्लड है, यहां एक वॉल्व होते हैं। इस वॉल्व के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके चूंकि 3 पार्ट होते हैं तो इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। तो इसके जरिए से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ओपन हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये ब्लड अभी कौन सा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ फ्लो चार्ट साथ साथ लिखते रहेंगे कि कहाँ से ब्लड गुजर, ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल में चला गया। किस में चला गया? राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर? अच्छा, भी राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है, फिर एक यहां से राइट वेंट्रिकल से एक नाली निकलती है। ये नाली फेफड़ों के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जाती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजनेशन होनी। अच्छा, चूंकि हमारे फेफड़े 2 है, इस वजह से ये ऊपर जाके ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। आप ये समझ लें, एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है। तो ये वाली जो नाली है इसको पल्मोनरी ट्रंक कहा जाता है। ये वाली नाली क्या कहती है? पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन आपको पता है कि जो पल्मोनरी ट्रंक जहां से शुरू होती है, वहां करके यहां भी एक वाल्व होते हैं। इस वाल्व को सेमील्यूनर वाल्व कहा जाता है। तो हुआ क्या? अभी जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ही है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमील्यूनर वाल्व के जरिए से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक इसको लेके निकल जाएगी लंग्स में, और लंग्स में जाके उसकी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजनेशन होगी। क्लियर? तो पल्मोनरी ट्रंक लंग्स में ब्लड को लेके जाएगा, वहां इसकी क्या होगी? ऑक्सीजनेशन होगी। ठीक है? क्लियर? अच्छा, जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ब्लड को वापस लेके आती है। और 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से आ रही होती है और 2 पल्मोनरी वेन्स राइट से आ रही होती है। ठीक है? और अच्छा, ये वाली भी इसके साथ कनेक्टेड होती है लेफ्ट एट्रियम के साथ, ये वाली भी लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्ट होती है। तो लंग्स से जो ब्लड आया है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए से, किसके जरिए से? पल्मोनरी वेन्स के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आया है। ठीक है? अभी मैं रेड से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। क्लियर? अच्छा, फिर जो लेफ्ट एट्रियम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये यहां भी एक वॉल्व लगा होता है, लेकिन उस वॉल्व और हमारे राइट साइड वाले जो वॉल्व है उसमें फ़र्क क्या है कि ये बाइकस्पिड वॉल्व है। तो इसी के ज़रिए से जो ब्लड है वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो ब्लड है वो बाइकस्पिड के ज़रिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अच्छा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो दीवार है, ये ऊपर वाले चैम्बर की दीवारें पतली है क्योंकि उन्होंने ब्लड को जस्ट वेंट्रिकल्स में भेजना होता है। नीचे वाले जो चैम्बर है इनकी दीवारें मोटी है क्योंकि इन्होंने बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शन में ब्लड को राइट वेंट्रिकल की दीवार फिर भी पतली है क्योंकि इसने लंग्स में भेजना होता है। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो दीवार है वो इवन जो राइट वेंट्रिकल है उससे भी आप कह सकते हैं 3 टाइम्स थिकर है। इसकी जो दीवार है वो 3 टाइम्स थिकर है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। चले, तो बारह लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारे पास ब्लड आ गया तो यहाँ से एक नाली निकलती है, उस नाली को हम कहते हैं एओर्टा। वो नाली जब निकलती है तो निकलते ही वो राइट साइड पे बेंड करती है ऐसे, और फिर हमारे पास ये बेंडिंग के बाद ये नीचे की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है? नीचे, और फिर हार्ट के पीछे से होती हुई नीचे और नीचे वाले पोर्शन में चली जाती है। चलिए, ये वाली जो हमारे पास ब्लड वेसल है इसको एओर्टा कहा जाता है,
और यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, यानी सॉरी ट्राइकस्पिड कह रहा हूँ, सेमील्यूनर वाल्व। तो यहाँ भी सेमील्यूनर वाल्व है, एओर्टा। अच्छा, एओर्टा के जरिए से जो ब्लड है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एओर्टा जब तकसीम होता है तो उसके बाद आर्टरीज बनती हैं। क्या बनती है? आर्टरीज। अच्छा, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं वो जगह है जहाँ ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाती है, और फिर कैपिलरीज से ब्लड आगे वेन्स में जाता है, और वेन्स फिर दोबारा ब्लड को इकट्ठा करके वेना कैवा में डाल देती है। क्लियर? तो वेना कैवा, राइट एट्रियम, ये पूरी सर्कुलेशन, वेना कैवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर सेमील्यूनर वाल, इसको पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल कहा जाता है। फिर आप कह सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में चला गया, फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, बाइकस्पिड के ज़रिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व कहा जाता है, और एओर्टा में। अच्छा, ये जो एओर्टा निकलता है तो जहाँ ये बैंड करता है यहाँ से भी आगे 3 ब्रांचेज निकलती है, यहाँ से भी आगे 3 ब्रांचेज आप कह सकते हैं निकलती है। तो एओर्टा यहाँ से बैंड होकर 3 ब्रांचेज निकलती है। एक हमारे, अच्छा ये वाली जो ब्रांच है ना, ये हमारे लेफ्ट बाजू की तरफ भी जा रही है, और इसका कुछ पोर्शन हेड रीजन की तरफ भी जा रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि हेड रीजन की तरफ जा रही है, और ये जो ब्रांच है ये हमारे लेफ्ट आर्म की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये निकलते ही आगे 3 पोर्शन में डिवाइड हो, फिर ये जब नीचे की तरफ आते हैं एओर्टा, फिर फर्दर आगे उससे मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रांचेज है वो निकल रही होती है। तो इस तरह ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है थ्रू द हार्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अगले जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल होंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल है कार्डियक साइकिल। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि साइकिल उस चीज़ को कहा जाता है बायोलॉजी में, कोई भी एक्टिविटी जो बार बार एक ही तरह रिपीट हो रही हो। जैसे डे एंड नाइट का साइकिल है, पहले डे आता है, फिर नाइट आती है, फिर डे आता है, फिर नाइट आती है। तो ये एक साइकिल, सीज़न की एक साइकिल है। ठीक है, पहले आप कह सकते हैं बहार आती है, फिर गर्मी आती है, फिर खिज़ां आती है, फिर सर्दी आती है, अगले साल भी फिर ये आप कह सकते हैं सीक्वेंस फॉलो होती है। तो जब एक दिल धड़कता है तो उस धड़कन में जो हमारे हार्ट के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, कभी हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, कभी हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक सारे के सारे हमारे हार्ट के अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, उनकी तरतीब को हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल, क्योंकि वो हार्ट बीट में एक ही तरह रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब क्या है, जैसे हमारा जो हार्ट है ये हमेशा कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वर्क कंटिन्यूसली, और इसका जो वर्क है वो साइक्लिक है, कि हमेशा ये साइक्लिक वर्क कर रहा है। कैसे कि बाद ऑफ हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं और बाद ऑफ हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक रूल याद रखेंगे, जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं तो ये रिसीव करते हैं रिसीव द ब्लड, ये ब्लड को रिसीव करेंगे। क्लियर? और जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रोपेल करेंगे ब्लड को मुख्तलिफ जगहों पे भेजेंगे, प्रोपेल द ब्लड। तो रिलैक्स करने को रिलैक्स करेंगे तो रिसीव द ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे प्रोपेल द ब्लड। अच्छा, जो रिलैक्स करने वाली फेज होती है हार्ट की वो डायस्टोल कहलाती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली स्टेज होती है वो सिस्टोल कहलाती है। क्लियर? और ये काम हमारे हार्ट में अल्टरनेटिवली हो रहा है। हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये नहीं होगा 2 दफ़ा हार्ट के चैम्बर ने रिलैक्स कर दिया इकट्ठा 2 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर, ऐसे नहीं होगा। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो अल्टरनेटिव रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ हार्ट चैम्बर है, हार्ट चैम्बर, ठीक है, ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन के दौरान, तो ये सेल साइकिल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सेल साइकिल कहलाती है। क्लियर? या इसको सॉरी सेल साइकिल कह रहा हूँ, कार्डियक साइकिल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कार्डियक साइकिल कहलाती है। क्लियर?
अच्छा, अगर ये कार्डियक साइकिल 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले क्या होता है कि पूरा हार्ट रिलैक्स करता है, चाहे उसके एट्रिया हो या वेंट्रिकल। इसको हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल, क्योंकि हमने कहा रिलैक्सेशन वाली फेज क्या कहलाती है, डायस्टोल। और ये वो फेज है जिसमें जो है एट्रिया भी रिलैक्स करता है, एट्रिया भी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और वेंट्रिकुलर्स भी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्लियर? लेकिन हमारे पास इन दोनों में से चूंकि एट्रिया ने ब्लड को बॉडी से रिसीव करना है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में हमेशा ब्लड आता है, तो इस वजह से ब्लड बॉडी से डायरेक्टली या फेफड़ों से डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता। तो जिस वक्त एट्रिया रिलैक्स करता है, इट रिसीव द ब्लड, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है? अच्छा, दोनों एट्रिया एक ही वक्त में ब्लड को रिसीव करते हैं। कैसे? जो राइट एट्रियम है वो वेना केवा से ब्लड को रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास रिसीव कर रहा है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से रिसीव कर रहा। ठीक है? तो सबसे पहले एट्रियल और वेंट्रिकुलर रिलैक्स किया, तो इस पूरे फेज को हमने क्या कहा, कार्डियक डायस्टोल कहा। तो इसमें हार्ट ब्लड को रिसीव करेगा, लेकिन चूंकि हार्ट में ब्लड पहले एट्रिया में आता है, तो वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। क्लियर? अच्छा, जिस वक्त ब्लड इसमें आ जाएगा, अब क्या होगा, ये आके दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, ये दीवारों के ऊपर क्या लगाना शुरू कर दिया, प्रेशर। यानी हुआ क्या कि जिस वक्त हमारे पास ब्लड एट्रियम में आना शुरू हुआ, एट्रियाज में, चाहे वो राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, तो इसने क्या किया, फिल द एट्रिया विद ब्लड, कि जिस वक्त जो एट्रिया है वो ब्लड के साथ फिल होते हैं, तो ब्लड एट्रिया की दीवार पे क्या करते हैं, एक्सर्ट फोर्स या एक्सर्ट प्रेशर करते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी का ना एक रूल है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे रेक्टम में जब फीसिस भर जाते हैं, तो फीसिस रेक्टम की दीवार पे प्रेशर लगाते हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, फीसिस को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी तरह जब हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं और हमारे चेस्ट कैविटी फूलती है ऐसे, तो जब वो प्रेशर आता है चेस्ट कैविटी के ऊपर, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और उसको फिर दबाती है और हवा को निकालने की कोशिश करती है। इसी तरह जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर की दीवारों पे जब प्रेशर लगाता है, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और उस यूरिन को निकालने की कोशिश करती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब एट्रिया ब्लड से फिल हो जाएंगे, तो ये जो प्रेशर लगेगा एट्रिया की दीवार के ऊपर, तो इस प्रेशर की वजह से फिर एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसको क्या कहा जाता है, एट्रियल सिस्टोल। देखो, अभी मैंने बात की सिर्फ एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन की है, अभी वेंट्रिकुलर कौन सी पोजीशन पे, रिलैक्स पोजीशन पे। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होगा या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। अच्छा, जिस वक्त ब्लड आएगा तो ये चैम्बर भी फिल होना शुरू होंगे, और इनके फिल होने से भी प्रेशर लगेगा, एक्सर्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। और जब प्रेशर ऑफ ब्लड लगेगा, तो ये जो वेंट्रिकुलर हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो तीसरी जो फेज है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी पहली फेज पूरा हार्ट रिलैक्स कर गया, फिर दूसरी फेज एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज दिया, फिर तीसरी फेज वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल का इफेक्ट क्या होगा, जो ब्लड है, यानी यहां से जो ब्लड है
वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए से एओर्टा में जाएगा। क्लियर? ठीक। तो इस तरह हमारे पास ये जो कार्डियक साइकिल है 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। अच्छा, ये जो पूरे कार्डियक साइकिल की 3 फेजेस हैं, 0.8 सेकंड के अंदर ये सारा साइकिल कंप्लीट होता है। और डिवीजन क्या है? कार्डियक साइकिल 0.4 सेकंड में कंप्लीट होता है और जो एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकंड में कंप्लीट होता है और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। अच्छा, हमारा दिल कितनी दफ़ा धड़केगा? ऑन एवरेज जो हिसाब लगाया गया 60-70 साल की उम्र के इंसान की जो ऑन एवरेज है, वो हमारा जो दिल है वो तकरीबन 2.5 बिलियंस टाइम अपनी लाइफ के अंदर इंसान का दिल धड़कता है। ये एवरेज बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जो एक बंदा 100-120 साल की ज़िंदगी गुजार के जाएगा, जाहिर बात है उसकी धड़कन या उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होंगी, और जो बंदा 30 साल की उम्र में या 20 साल या 10 साल की उम्र में चला जाएगा उसके दिल की धड़कन कम होगी। तो ये ऑन एवरेज है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, जिस वक्त हमारे पास वेंट्रिकुलर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वाल्व ओपन होते हैं। वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 2 काम होते हैं। एक में जो एवी वाल्व्स होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये क्लोज होते हैं। और आप कह सकते हैं जो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, चाहे वो पल्मोनरी चाहे वो एओर्टिक हो, ये ओपन होंगे। ये क्या करेंगे? ओपन। ये क्या होंगे? क्लोज। तो जिस वक्त हमारे पास ये वाले वॉल्व बंद होते हैं, यानी जो एवी वॉल्व हैं, जब ये क्लोज होंगे तो क्लोज होते हुए एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसका नाम है लब। और ये कब प्रोड्यूस होगी? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। क्लियर? अच्छा, जिस वक्त वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगी तो सिस्टोल से मुराद कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, ये क्लोज होते हैं। तो जब भी वॉल्व क्लोज होगा साउंड प्रोड्यूस करेगा, और सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डब की साउंड प्रोड्यूस। और ये वाली जो लब की साउंड है, ये हम स्टीथोस्कोप के जरिए से सुन सकते हैं। और आपको पता है स्टीथोस्कोप, इसको मैं अक्सर कहता हूँ इट इज़ ए इंतखाबी निशान ऑफ डॉक्टर्स, कि ये डॉक्टर का इंतखाबी निशान है। आमतौर पे जब भी कोई डॉक्टर, बल्कि इवन जो फर्स्ट ईयर में MBBS के होते हैं, वो भी यहाँ स्टीथोस्कोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप वो स्टीथोस्कोप आप लोगों ने देखी होगी, जो BP को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्टीथोस्कोप कहलाती है। क्लियर? तो जब देखें ना आप, दरवाज़ा खुलते तो इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो तो एक आवाज़ आती है, तो बंद होने पे ज़्यादा आवाज़ आती है। और ये लब डब की जो साउंड है, ये क्लोजर ऑफ वाल्व्स, यानी जब वाल्व बंद होंगे उस वक्त ये साउंड आएगी। अच्छा, अब देखें आप, जैसे मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी में सफ़र, उसके शीशे बंद है तो बाहर से आवाज़ कम आएगी, लेकिन अगर उसका शीशा हल्का सा भी खुला हुआ हो तब भी बाहर का शोर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये जो वाल्व हैं, ये सही तरह क्लोज नहीं होते, डू नॉट क्लोज प्रॉपरली, या बाज़ दफ़ा ये जो वाल्व है तंग हो जाते हैं। अच्छा, इसके तंग होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है उसमें टर्बुलेंस आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? टर्बुलेंस, एक शोर सा आ जाता है। वो टर्बुलेंस एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उस टर्बुलेंस को के शोर वाली साउंड को मरमर्स कहा जाता है। तो बाज़ दफ़ा तो ये हमारे हार्ट की नॉर्मल साउंड नहीं, तो ये कब हुआ कि जब हमारा जो वॉल्व है वो सही तरह क्लोज नहीं हो रहा, या आप कह सकते हैं जो हमारा जो वॉल्व है वो किसी भी वजह से नैरो हो गया, तो मरमर्स। अच्छा, आमतौर पे ये जो फॉल्ट होते हैं ये बहुत थोड़ा सा होता है, इस वजह से ये जो मरमर्स होती हैं ये ज़्यादातर जो
प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं करती। मोस्ट ऑफ द जो मर्मर्स हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं करती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता है ये एबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर आपको ये वाल्व या तो रिप्लेस करने पड़ेंगे सर्जरी के ज़रिए से। अब रिप्लेसमेंट में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आर्टिफिशियल वाल्व लगाए जाते हैं या कोई ऑर्गन डोनर, कोई आप कह सकते हैं कोई वाल्व किसी दूसरे शख्स से लेकर उस शख्स में फिट किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं डोनर, कि उसने वाल्व को डोनेट किया है। तो बहरहाल मर्मर्स की सिविरिटी पे डिपेंड करता है कि इनका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे दो आर्टिकल, एक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और दूसरा हमारा जो आर्टिकल है वो कार्डियक साइकिल और साउंड ऑफ द हार्ट है। तो बहरहाल ये आज का लेक्चर था, आज के लिए इतनी ही। अल्लाह हाफिज़।